Honorable Shri Arun Kumar Saxena, Minister of Environment and Climate Change, Uttar Pradesh. Shri Mukesh Kumar Mesramji, Principal Secretary, Director of Tourism. Senior officers of the state government present here, members of the press, media, friends, and ladies and gentlemen. On behalf of all the members of ITO and the delegates, I express my sincere thanks and gratitude to the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath for sparing his valuable time and blessing us with the beginning presence today, which has created a confidence amongst the travel trade that how much you care about the tourism industry. Sir, without your tremendous support, this convention in Lucknow would not have been possible. We have no words to express our gratitude for all that you have done to provide a meaningful to our efforts in this convention. Sir, आपकी वजह से जो टूरिज्म और हमारा ये था, मैंने माननीय मेसराम जी को बोला था, हमारा ये है कि अयोध्या को हम अगले 2 सालों के अंदर ऐसे इंटरनेशनल मैप पे लेके जाएंगे जैसे आज वाराणसी में लोग जा रहे हैं, फॉरेनर्स जा रहे हैं, डोमेस्टिक जा रहे हैं, ऐसे अयोध्या में आए और यहाँ पर कम से कम 20-25 5 स्टार 3 स्टार होटल बने, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े अयोध्या क्षेत्र में। ये हमारा वो है और हम करके देंगे। We deeply acknowledge the guidance, help and coordination of Shri Jaiveer Singh, who is not in India at the moment. Extremely thankful to Shri Mukesh Kumar Mesram ji, Shri Ashwini Kumar Pandey ji, Shri Prakhar Misra ji and other UP tourism personnel for the support and guidance in making this convention a success. We have over 1,000 delegates attending this convention. I also welcome Honorable Shri Jayashankar ji, Honorable Minister of Transport, Government of Uttar Pradesh for his presence and blessings. My sincere thanks to Honorable Arun Kumar Saxena, Minister of Environment. This is a much needed moral boost dose for us, and we hope inbound tourism to India will be fully recovered soon. ITO members have attentively listened to all deliberations and not vote local to the post tours that will lead them in the market Uttar Pradesh across India and global. The intellectual inputs are very necessary, especially the unprecedented vaccination campaign led by the Honorable Prime Minister. Sir, हम यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं कुछ तो आज अयोध्या गए हुए हैं और यूपी टूरिज्म के साथ सहयोग से हमको 300 लोग और अयोध्या और वाराणसी लेके जा रहे हैं सर लेके मिलेंगे. So I'm confident of the positive outcome of the convention, and I will look forward to close interaction with the Uttar Pradesh government to promote inbound tourism. Honorable Chief Minister, sir, you have my words on our planned efforts to further endeavor of your tourism team and make Uttar Pradesh a global leader destination, a hub for spiritual and religious tourism. We all must take a vow, हम सब कसम खाएं कि हम जब भी आउट बाहर जाते हैं प्रमोशन के लिए, यूपी जिसमें 5 से 6 नए एक्सप्रेस हाईवे बन गए जो कहीं भी नहीं है, 3 एक्सप्रेस हाईवे नहीं बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स तो योगी जी की वजह से सब कुछ हो गया. अब मैं सिर्फ योगी जी को बाद में लेटर भी लिखूंगा कि सर ये रेलवे मिनिस्टर को बोल के जो हमारी रिक्वेस्ट रही है वंदे भारत को टुंडला में 2 मिनट का स्टॉप करना है, तो जिससे हमारा ट्रैफिक मथुरा का प्रयागराज और वाराणसी आराम से पहुंच सके. ये हम इनसे गुजारिश करेंगे कि ये रिक्वेस्ट करें. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. We now have a short film that showcases tourism in the state of Uttar Pradesh. वो उठ जाते हैं. नहीं खड़े होंगे, कोई भी सब खड़े हो जाते हैं. खड़े मत हो, पीछे नहीं खड़े होंगे, पीछे पीछे समझो बात को यार. अपने लिए बदल कम खड़ा मत करो. आ रहा है आप आगे जाओ. बस खड़े मत होना प्लीज, कोई भी खड़े मत होना.
बुंदेलखंड में देवगढ़, कालबीर, महुआ, पुरातत्व आदि तीर्थ तथा विविध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा में धनी भूभाग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जहां एक तरफ प्रकृति का अनूठा रूप है मस्तानी महल के पास की जाने वाली कमल की खेती, तो वहीं दूसरी तरफ लकड़ी के खिलौनों का मुख्य केंद्र चित्रकूट व्यापार को बढ़ावा देता है। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले वीरों के त्याग, शौर्य एवं बलिदान की गाथाएं कहते हैं। किलों के अतिरिक्त बुंदेलखंड में कई विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिनमें ललितपुर के घने जंगलों में स्थित दशावतार विष्णु मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नवी शताब्दी रोहित सागर के किनारे बसा चंदेल शासक का सूर्य मंदिर, चित्रकूट के मंदिर आदि धार्मिक एवं प्राचीन महत्व के अतुलनीय उदाहरण है। बुंदेलखंड की बेतवा एवं चंदेल व बुंदेल शासकों द्वारा निर्मित विशाल तालाब तथा झीलें प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। ललितपुर, चित्रकूट व महोबा के खूबसूरत जल वन पर्यटन के प्रमुख स्थल हैं, जहां रोपवे एवं ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। बुंदेलखंड के ललितपुर को पहाड़ों का जिला भी कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई बांधों का गढ़ है। वहीं ललितपुर से 35 किलोमीटर दूर गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध देवगढ़ का किला स्थित है। किले के पास प्राचीन जैन तीर्थ स्थल है। वहीं पर महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध आकर्षण है। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर, संस्कृति, लोक नृत्य, आंधा उदल के लोकगीत, दिवाली के अवसर पर होने वाला दिवाली नृत्य, लोक नाट्य, जीवन शैली, साहित्य, रीति रिवाज, त्योहार, व्यंजन, वैभवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत, गौरवशाली होने के साथ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और प्राकृतिक वातावरण वैभवशाली है। उतनी ही यहाँ की लोक संस्कृति अतुलनीय है। आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद मैं योगी जी की सरकार को कहूंगा कि आप भी इन किलों को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइए। दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आए और मेरे बुंदेलखंड की ताकत को देखे। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की पानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। Ladies and gentlemen, you're all aware that the 38th IATO Convention is to be held in the state of Maharashtra, and we have a visual invitation from the Honorable Minister of Tourism, Maharashtra, Mr. Mangal Prabhat Lodha. Please watch. मैं महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन मंत्री के नाते आप सबको इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि आपकी एसोसिएशन एक परिवार के रूप में पूरे भारत के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्टों के हित रक्षण के लिए, और आपका बहुत बड़ा काम सरकार के साथ में अच्छे तरीके से हमारा देश दुनिया के अंदर टूरिज्म कैपिटल के रूप में जाना जाए, इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और हमारे महाराष्ट्र के सभी टूर एजेंट्स की तरफ से, ट्रैवल एजेंट से जुड़े हुए सभी लोगों की तरफ से आपको निमंत्रित करना चाहता हूँ कि 2023 का आपका ये कार्यक्रम जो इस बार आपने लखनऊ में किया है, अगली बार आप हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में करें। हमारे औरंगाबाद के कोठारी जी, जसवंत जी और भी
कई सारे लोग आपको निमंत्रित करने के लिए आए हैं। मैं आपके पास व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सका, पर आप मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करके इस सभा के अंदर ये निश्चय करें, हम मिलेंगे संभाजी नगर औरंगाबाद में मिलेंगे, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर अम्बेडकर की भूमि पर मिलेंगे। हम आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। आपका मंगल प्रभात रोड़ा, पर्यटन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार। धन्यवाद। We now have the chairman of the convention, Mr. Ravi Gosai, to please present a brief outline on IATO. माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री दयाशंकर जी, मंत्री परिवहन उत्तर प्रदेश माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन श्री मुकेश मेश्राम जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड डायरेक्टर जनरल टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सीनियर ऑफिशियल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ प्रेस एंड मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एसोसिएशन आयाटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, केवल 7 मेंबर से, और आज 40 वर्ष के बाद इसमें करीब 1700 मेंबर हैं जो पूरे भारतवर्ष में हैं। हमारे 28 स्टेट्स में स्टेट चैप्टर्स हैं और जो हमारे मेंबर्स को देखते हैं, और हमारी जो मेंबरशिप है उसमें टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटल्स, एयरलाइन, गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल ऑपरेटर और प्रेस और मीडिया के सदस्य होते हैं। हमारे सारे जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो टूर ऑपरेटर होते हैं और भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से पंजीकृत हैं। और हमारा जो मुख्यतः कार्य है वो भारत में विदेशी पर्यटकों को लाना है। और मुझे ये गर्व महसूस होता है बताते हुए कि भारत में जो 90% विदेशी आय पर्यटन से होती है वो हमारे मेंबर्स के द्वारा होती है। और इसके साथ साथ जो हमारी संस्था आयाटो है वो इंटरनेशनल पे कई देशों के साथ MOU साइन है हमारे वहाँ की संस्था के साथ, जिससे कि हम टूरिज्म के क्षेत्र में आदान प्रदान करते हैं। और आयाटो जो है इतने सालों से भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ाने के लिए काम करती है। इसके अलावा हम लोग अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को भी बखूबी से निभाते हैं। और हमने समय समय पर जब भी राष्ट्रीय आपदा हुई है, प्राकृतिक आपदा हुई है, माफ़ कीजिएगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर फंड में और नेशनल डिफेंस फंड में हमारे मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है। चाहे वो उड़ीसा का साइक्लोन हो, चाहे वो गुजरात का अर्थक्वेक हो, चाहे वो फ्लड्स हो केरला के, या उत्तराखंड केदारनाथ की आपदा हो। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब ताली बजा करके सभी दानकर्ताओं का स्वागत करें। और हम लोग का ये वार्षिक कन्वेंशन है 37वां, जो कि हम लोग हर वर्ष किसी नए राज्य में करते हैं ताकि उस राज्य का प्रचार प्रसार हमारे मेंबर कर सकें। और जो आते हैं तकरीबन 1000 डेलीगेट्स हैं, सब टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स और उनके परिवार स्पाउसेस को मिला करके। और इसमें काफ़ी सारे लोग कई स्टेट्स के मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पे सारे लोग आज उपस्थित हैं। और इस कन्वेंशन में हम लोग एक ट्रैवल मार्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि इस साल 19 स्टेट के लोग आए हैं। और हमने आज सुबह एक आयाटो रन भी ऑर्गेनाइज की थी, जिससे कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ताकि लोगों को पता रहे कि हम लोग को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए के लिए, और मोटिवेट करने के लिए दौड़ का हमने प्रायोजित किया था। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ अपनी संस्था की तरफ से कि आने वाले 1 वर्ष में यहाँ पे विदेशी पर्यटकों की संख्या 20% बढ़ेगी। और सिर्फ आगरा और वाराणसी में बहुत सारे पर्यटक आते हैं, लेकिन हम लोग इस बार जो हमने अभी इस आयोजन के बाद जो 200-300 लोग हमारे जाएंगे, उसमें अयोध्या है, वाराणसी है, इलाहाबाद, चित्रकूट, मथुरा और आगरा, यहाँ से लोग जाएंगे।
तो ये सब देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जब खुद से टूर ऑपरेटर लोग इस जगह को देखेंगे तो वो उसको बड़े अच्छे से देश विदेश में जाकर के प्रचार प्रसार कर सकेंगे। और मैं आपका अंत में धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकालकर सबके बीच आने का कष्ट किया, ये हमारा सौभाग्य है और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Kasai. Honorable Chief Minister, sir, we have two books that we would like you to release now. The first is a coffee table book by the Department of UP Tourism on the region of Bundelkhand that is famous for its temples with elegant shikaras and sculptures. Along with this book on Bundelkhand, there is also a directory which is like a ready reckoner of all tourism destinations of UP. नीचे भाई, अरे फ्लैश आ रहा है नीचे भाई। The book on Bundelkhand and the directory that we have. फोटो के लिए सर थोड़ा जी भाई। The second book is the IATO Manual, which is a directory of all its members with a few articles on relevant topics. IATO members manual. We now have the Marketing Innovation Competition Awards that we would request the Honorable Chief Minister, Yogi Adityanath ji, to please present. These awards, ladies and gentlemen, are to honor outstanding work for creative, authentic, and relevant design work in 4 categories. We are giving out the awards for the state tourism bodies by the Honorable Chief Minister today, and we'd like to now invite our awardees to come up one by one as I announce the names. The best booth goes to Uttar Pradesh, and we've got Mr. Ashwini Pandey, Special Secretary Tourism, and Mr. Prakhar Mishra, Director Tourism, to please come up to receive the award from the Honorable Chief Minister. Congratulations. The best digital marketing goes to Madhya Pradesh, and you've got Mr. Yuvraj Padole, GM here, to receive it. Best poster goes to Manipur, and we've got Mr. Ibohal Singh, Director, to receive it. Best brochure goes to Maharashtra, and you've got Mr. Ajit Mohite, travel expert and consultant, to receive it. And the fifth one, which is the best video CD, goes to Ladakh, and we've got Ms. Kunjis Angmo, Director, Tourism, to receive it.
There are several other awards which will be given in the evening, the other category awards. Thank you very much, sir. I'd like to request now the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, to please share his thoughts with us. आइटो कन्वेंशन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, दयाशंकर सिंह जी, भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजीव मेहरा जी, उपाध्यक्ष CM नजीर जी, एसोसिएशन के सदस्य सचिव श्री रजनीश कैस्ता जी, संजय राजदान जी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री रवि गोसाई जी, देश भर से आए हुए सभी टूर ऑपरेटर्स, आयोजन समिति के सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2.5 दशक के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आइटो ने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आज से 26 वर्ष पहले जब यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ होगा, उस समय के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में आपको काफी फर्क महसूस हो रहा होगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं और संभावनाओं को अगर आप देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर हम सब ने जो प्रयास किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसका परिणाम है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो अनंत संभावनाएं हैं और एक क्षेत्र में जहां भी आप जाएंगे, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने के लिए की हकदार है, काशी, वो हमारे पास है। और काशी में जाकर के हरेक श्रद्धालु और पर्यटक अपने आप ही हर हर महादेव के उस ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ करके आनंद की अनुभूति करता है। काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण विगत वर्ष किया। अभी 13 दिसंबर को 1 वर्ष पूरे हुए हैं। अमूमन वाराणसी में वर्ष भर में 1 करोड़ पर्यटक आता था और इस वर्ष अकेले सावन माह में 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी में आया है। 1 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी में आया है। अयोध्या
हर एक भारतीय की, और हर वह भारतीय जो देश और दुनिया में जहां कहीं रह रहा हो, अयोध्या आकर के भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के दर्शन करने की अभिलाषा रखता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या जाए और वहां जय श्री राम न बोले? हर एक भारतीय इस अभिलाषा के साथ अयोध्या आता है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य जो युद्ध स्तर पर चल रहा है, और जो फुटफॉल हुआ है वहां पे पिछले 4-5 वर्षों के अंदर दीपोत्सव से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और अपने अब चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरा यह मानना है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में हमारी लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में हमारे वहां पर संचालित हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए। जब ये पूरे होंगे, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में आपके सामने अयोध्या होगी। और मेरा मानना है कि जितना पर्यटक वर्तमान में आता है, इसका लगभग 10 गुना पर्यटक 2024 के बाद से अयोध्या में आता हुआ दिखाई देगा। मथुरा वृंदावन भी उत्तर प्रदेश में ही है, और कौन ऐसा श्रद्धालु और टूरिस्ट होगा जो वहां जाए और राधे राधे न बोले? हर व्यक्ति उसमें मग्न होता हुआ दिखाई देता है, क्या देसी क्या विदेशी। पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने बदलती हुई मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना को देखा होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो या रंगोत्सव का आयोजन, उसके साथ सबको जुड़ते हुए भी देखा होगा। वहां के आध्यात्मिक विकास के साथ ही वहां पर भौतिक विकास और बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित हुए इस तीर्थ को भी आपने सबने महसूस किया होगा, जिन्होंने विगत 5 वर्ष के अंदर इस क्षेत्र की में जाने का जिन्हें अवसर मिला हो। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ब्रज क्षेत्र के, इनके विकास के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार वर्तमान में भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के साथ ही वहां के भौतिक और विकास और बुनियादी सुविधाओं पर वर्तमान में लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए हमारे वर्तमान में वहां खर्च हो रहे हैं इन सुविधाओं को वहां पे बढ़ाने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन जिस स्थान पर होता है, मां गंगा और यमुना का मिलन केंद्र संगम प्रयागराज, वह भी उत्तर प्रदेश में है। और 2019 का प्रयागराज कुंभ जिसने भी देखा, जो भी वहां गया है, वह जरूर अभिभूत हुआ होगा। 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे इस आयोजन में। 24 करोड़ श्रद्धालु किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़े, और कहीं कोई सामान्य भगदड़ की बात तो दूर, धक्का मुक्की भी नहीं हुई। सुरक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक सुरक्षित प्रदेश है। हमने इस क्षेत्र में ढेर सारे रिफॉर्म किए हैं, और उत्तर प्रदेश आज जहां इस दिशा में आगे बढ़ा है, वहीं यानी रामायण सर्किट हो या कृष्णा सर्किट या बौद्ध सर्किट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को इंप्लीमेंट करने का, व्यवहारिक धरातल पर लागू करने की कोई एक वास्तव में भूमि है तो वह उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 प्रमुख केंद्र भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में चाहे वह भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश इस धरती पर दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, महापरिनिर्वाण जहां पर भगवान बुद्ध ने लिया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में,
भगवान बुद्ध ने अपना बचपन जहां व्यतीत किया था वह कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चातुर्मास जहां उन्होंने व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी और संगीसा भी उत्तर प्रदेश में। यहां के विकास के लिए भी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए बौद्ध सर्किट को और अच्छे ढंग से पर्यटन मैप पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कुशीनगर में हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ हो चुका है। श्रावस्ती में हम लोग एयरपोर्ट का विकास कर रहे हैं। विकास की प्रक्रिया एक निरंतर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ, राजधानी लखनऊ में हैं, यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर भारत की पूरी वैदिक परंपरा को लिपिबद्ध करने की धरती नैमिषारण्य भी मौजूद है। वहां के समग्र विकास को ध्यान में रख करके केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भगवान राम ने जिस धरती पर सर्वाधिक वनवास के समय में अपना वनवास का कालखंड व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में। भागवत भूमि के रूप में जानी जाने वाली सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश में, मां विंध्यवासिनी का धाम भी उत्तर प्रदेश में। अगर आप उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो वह आपको, या विंध्य क्षेत्र में या बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां पर आपको इको टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का भी एक अलग ही आनंद देखने को मिलेगा। कौन ऐसा विदेशी है जो आकर के भारत आए और आगरा न आए? ये भी उत्तर प्रदेश में। तो टूरिज्म की जो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है उसको ध्यान में रख करके हम सब मानते हैं कि सर्विस सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां पर निवेश और रोजगार के माध्यम से ढेर सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और उस दिशा में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य चल रहे हैं, 6 एक्सप्रेसवे हमारे बनकर के तैयार हो चुके हैं, चालू स्थिति में है। 7 पे कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जो हमारे 54 स्थलों पर थी वह सभी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है और सबसे अच्छी एयर कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश में है। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम कार्य कर रहे हैं। बहुत शीघ्र हम उनको भी क्रियाशील करेंगे, जिसमें एक अयोध्या में भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में बन रहा है और दूसरा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में निर्माणाधीन है। 10 नए एयरपोर्ट पर हम कार्य कर रहे हैं। कोई सोचता ही नहीं था, पहले बुंदेलखंड जाने के रास्ते ही नहीं थे। आज बुंदेलखंड को हम एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ चुके हैं और चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट भी बन रहा है। सोनभद्र में एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे, लेकिन आज आजमगढ़ को हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ में जोड़ा है और एयरपोर्ट का निर्माण भी वहां हो रहा है। अलीगढ़ हार्डवेयर का कितना बड़ा केंद्र, आज एयरपोर्ट के साथ हमने उसे जोड़ा है। मुरादाबाद रॉस आइटम के लिए जाना जाता है, आज वहां पर हम लोगों ने एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। 10 नए एयरपोर्ट हम लोग वर्तमान में बना रहे हैं, बहुत सी, जिसमें से 5 का हमारा एमओयू एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हो चुका है कि उससे एयरपोर्ट अथॉरिटी उसकी देखभाल करे, उनको संचालित करे और जो भी बाकी खर्चा आएगा वह राज्य सरकार उसमें वहन करेगी। 5 पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र हम उसे भी क्रियाशील करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देश का पहला
वह भी हल्दिया से वाराणसी को जोड़ चुका है और इसे प्रयागराज तक विस्तार करने और इसे अयोध्या तक भी आगे ले जाने की तैयारी हमारी चल रही है और भारत सरकार के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बुंदेलखंड में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने जो आपके सामने प्रस्तुत किया बुंदेलखंड के किलों के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसका एक अलग ही सर्किट का निर्माण का कार्य चल रहा है। उस पर हम लोग युद्ध स्तर पर उस कार्यक्रम को, वहां की पॉलिसी को लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे इन क्षेत्रों में आएंगे जो नेपाल से सटे हुए तराई के जनपद हैं, इको टूरिज्म के कितने अच्छे सेंटर हैं। वहां पर अगर हम देखेंगे प्रकृति का अपना ही अलग आनंद है। विंध्य क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां का अपना एक अलग ही आनंद है। और इसलिए आप सभी जो देश भर से आए हुए टूर ऑपरेटर्स से मैं इस बारे में कहूंगा कि इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सबसे पहले सुरक्षा का। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था देश के सामने एक नजीर है और इसलिए सुरक्षा की सबसे बेहतरीन गारंटी कोई दे सकता है उत्तर प्रदेश दे सकता है। दूसरा, कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने तो टूर ऑपरेटर्स को भी और अन्य तमाम संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया, आइए हमारे यहाँ इन सभी सर्किट को आप जोड़िए, थोड़ा हेली सेवा के साथ इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को बढ़ाइए। हम इसमें सहयोग करेंगे, हर प्रकार का सपोर्ट राज्य सरकार करेगी। इसे इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और प्रदेश ने हर एक स्थान पर पर्यटकों के रहने, उनके अन्य सुविधाओं की दृष्टि से होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट, मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य विकसित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए उसके लिए हमारी पॉलिसी है, कार्य उस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि सुरक्षा और कनेक्टिविटी के साथ ही हमारी टूरिज्म की बेहतरीन पॉलिसी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। आज जिस संस्थान में हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह हमारी पहली इन्वेस्टर समिट जो 2018 में हुई थी, वहां उस 2018 के एमओयू के आधार पर आपका ये कन्वेंशन सेंटर स्थापित हुआ है। ये अपने आप में एक मॉडल है। 2018 में हमारे साथ जो एमओयू हुआ, आज यहां पर 26 वर्ष के बाद आपको जब लखनऊ आने का अवसर प्राप्त होगा इस ऐतिहासिक नगरी में, तो इस कन्वेंशन सेंटर का आनंद भी आपने पहले लिया है। मैं स्वयं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ आपके साथ, कम से कम आप ही के बहाने मुझे भी 18 के अपने एमओयू का एक व्यवहारिक धरातल पर उतरे हुए संस्थान को देखने का आनंद की अनुभूति और भी हमारे आनंद को दोगुना कर देता है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा। उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और अपने हर इन्वेस्टर पार्टनर को पूरी सुरक्षा की गारंटी भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। पूरी प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, कोई भी प्रक्रिया होगी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आगे बढ़ेगी। निवेश के लिए कोई आवेदन करेगा तो निवेश मित्र पोर्टल उसके लिए तैयार है। निवेश मित्र पोर्टल पे उसने आवेदन किया, अपने आप ही 350 से अधिक जो औपचारिकताएं विभिन्न कार्यालयों में होती है, जिसके लिए पहले कार्यालय में व्यक्ति को भटकना होता था, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही वह सारे कार्यक्रम अपने आप ही होते हुए दिखाई देंगे। ऑटो मोड पर सब कार्य होते हुए दिखाई देंगे। आपसे बीच बीच में कुछ क्वेरीज पूछी जा सकती है, उसका जितनी जल्दी जवाब देंगे उतनी जल्दी वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। उसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय करता है और मुख्यमंत्री कार्यालय उसको संपन्न करने के बाद फिर उसे व्यवहारिक धरातल पर लागू करने की कार्रवाई करता है। और जब एमओयू के तहत निवेश यहां पर हो जाता है
तो निवेश की प्रक्रिया के बाद शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम लोगों ने फिर ऑनलाइन करने की दिशा में आगे बढ़ कार्य किया है, और वह भी स्वयं निवेशक के खाते में स्वयं ही पैसा इंसेंटिव का जो भी धनराशि जानी हो उसके खाते में स्वयं जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, और मेरा मानना है कि आप इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं। यहां पे हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं हैं, लाखों लोगों को हम लोग रोजगार और नौकरी दे सकते हैं, लोगों को उत्तर प्रदेश की विरासत के बारे में, देश की वास्तविक विरासत के बारे में अवगत करा सकते हैं। देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित करके न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की जीडीपी को बढ़ाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके लिए मैं आप सभी टूर ऑपरेटर्स का उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि यूपी टूरिज्म के साथ मिलकर के आप इस दिशा में जो भी सार्थक प्रयास करेंगे, राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। आप सबने अपने इस कन्वेंशन के लिए उत्तर प्रदेश को चुना, मैं इसके लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा। आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की अनंत संभावनाओं का आप सब आनंद लेंगे और देशी विदेशी पर्यटकों को एक बेहतरीन वातावरण देने का कार्य करेंगे। आप सबके इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। To close the vote of thanks, may I now call upon the chairman, IATA Uttar Pradesh chapter and co-chairman of the convention, Mr. Prateek Hira. Ladies and gentlemen, I am extremely honored to propose the vote of thanks for the 37th IATA convention in Uttar Pradesh. We are extremely grateful to our Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji for giving us an opportunity to bring our conclave to Lucknow after a gap of 26 years. We are equally indebted to the most able Tourism Minister, Mr. Jaiveer Singh, for his guidance and support at all times. Our presence here wouldn't have been possible without the support of the most enthusiastic and dynamic Principal Secretary and Director General Tourism, Mr. Mukesh Kumar Meshram, and the two of his pillar officers, Mr. Ashwini Pandey, Managing Director of UPSTDC, and Director Tourism, Mr. Prakhar Misra, and of course, the entire team of UP Tourism. Sincere thanks to the Transport Minister, Mr. Daya Shankar Singh, and the Minister for Forest and Climate Change, Mr. Arun Kumar Saxena, for supporting IATO's cause and gracing this occasion today. We are grateful to Shri Mangal Prabhat Lodha, Honorable Minister of Tourism, Government of Maharashtra, and the Maharashtra Tourism for extending an invite for our 38th convention in Maharashtra. IATO extends its gratitude to Mr. Arvind Singh, Secretary Tourism, Government of India, for the valuable support extended by the Ministry of Tourism for this convention. We thank all the participating 20 states, secretaries of all the related ministries, and principal secretaries of all the estates, hotels, airlines, partners, and their support who were with us in these 3 days at this 37th IATO convention. I am happy to announce once again that at the inaugural session itself, we have crossed the registration mark of 1,000 for the first time in IATO's history. All thanks to all our members for their valued presence here in Lucknow. Thanks to the support of the universities, tourism institutes all around Uttar Pradesh for providing volunteers to assist us in conducting this mega show. The support of media has been exemplary, and we thank them for the valuable coverage of the convention from even before the convention began. Sincere thanks to our executive committee and all our regional and state chairmen, being led by our president, Mr. Rajiv Mehra. Last but not the least,
I thank the IATO Secretariat, the District Administration of Lucknow, and the local police who were the backbone of this convention all through that comes to an end today. But of course, the post-convention tours will continue all over the Uttar Pradesh, and all these members are going to different places. I know I have missed many names, but it is unintentional and only because I want to respect the time allocated to me. But I thank all and each one for the support and the presence at this 37th IATO convention. Before I leave, I once again announce that we will be meeting in Maharashtra for our 38th IATO convention. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we've come to the close of the valedictory ceremony. May I request you all to please remain in your places until the Honorable Chief Minister leaves the hall.